فرمایا اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا جنت کے مرتبے پہ چڑھتا جا. یہ نہیں ہے یعنی ہاں آج تو بہت چل رہا ہے یہ سامنے ہمارے ہاں پوری لائن لگی ہے اب تو خوب لگ رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے یعنی اب کیا کہیں بچوں کو بیچاروں کو پوری دیوار بن جاتی ہے اب تو. یہ نہیں کہا جائے گا موبائل چلاتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا، گانے سنتا جا چڑھتا جا، کامیڈی دیکھتا جا چڑھتا جا، ہنستا جا چڑھتا جا، مسکراتا جا چڑھتا جا. نہیں، اقرا پڑھتا جا، قرآن پڑھ، یہ پڑھ کے جا، قرآن پڑھ، پڑھتا جا چڑھتا جا، اور یاد رکھ جب تک پڑھے گا تبھی تک چڑھے گا. سبحان اللہ. سبحان. جہاں پڑھنا روک دے گا وہاں چڑھنا بھی روک دیا جائے گا. جب تک پڑھے گا تبھی تک چڑھے گا. ورتل، آپ تو بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں، مجھے بتایا مولانا نہال نے، ان کے لفظ اگر میں بتا دوں تو لوگ حیرت کریں کیا کریں، پڑھنے میں جن ہے وہ تو پڑھانے میں جن ہے. ان کے لفظ یہ ہیں، ان کے لفظ جو انہوں نے مجھے بتایا کہ قاری فہیم صاحب پڑھانے میں تو جن ہے. ہاں بہت میں نے یہ لفظ ہے، یہ محاورہ بولا جاتا، مطلب یہ نہیں یعنی جن نہیں بنے، وہ جن نہیں، جن کی طرح کام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ تمثیل ہے، اور تمثیل میں مطلب ممثل جو ہوتا ہے نا وہ ممثل لہو سے خارج ہوتا ہے، تمثیل شے سے خارج ہوتی ہے. تو اب یہ نہیں کہ یہ جن ہو گئے، مطلب یہ کہ جن کی طرح محنت کرتے ہیں، رات دن کام کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں تو محنت سے پڑھاتے ہیں. اب یہ پڑھاتے تو کیسے پڑھاتے؟ ترتیل کے ساتھ، بڑے پیار سے محبت سے بڑا پیارا قرآن پڑھاتے ہیں. ورتل، حدیث پاک میں ورتل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ، رک رک کے پڑھ، جلدی نہیں کرنا ہے، بہت تیزی نہیں پڑھ، بہت تیزی سے نہیں پڑھنا ہے. اگر جلدی جلدی پڑھے گا، جلدی جلدی پڑھے گا، جلدی کرے گا تو قرآن جلدی پورا نہیں ہو جائے گا. اگر جلدی کرے گا تو جلدی پورا ہوگا نا قرآن، جلدی پورا. سمجھ میں نہ آ رہی تو گردن ہلا کے بتا دو یار. اچھا جلدی جلدی اگر پڑھے گا تو جلدی نہیں ہو جائے گا پورا. جیسے تراویحوں میں آپ پڑھواتے ہو جلدی جلدی، نہیں کرواتے ہو جلدی، اور وہی حافظ تو زیادہ پسند آتے ہیں ہمیں کہ جو بہت تیزی کرتے ہیں، بڑی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، یعلمون تعلمون کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایسے ہی حافظ ہمیں بہت زیادہ پسند آتے ہیں، اور انہی کو کہتے ہیں کہ یہ ریل حافظ ہیں، بہت اچھا پڑھا انہوں نے، بڑے اچھے حافظ ہیں. لیکن ایسے قرآن سے کوئی فائدہ نہیں کہ جس سے آدھے کلمے غائب ہو جائیں، جس سے آدھے کلمے ختم ہو جائے. قرآن کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے، قرآن اگر پڑھا جائے تو اس طرح پڑھا جائے، اور مسجدوں میں تراویح میں اگر پڑھوایا جائے تو اس انداز سے پڑھوایا جائے کہ کلام مقدس کا ایک ایک کلمہ الگ الگ پھول کی طرح کھلتا چلا جائے، تبھی مزہ آئے گا. حدیث پاک میں اب کیا کہا گیا سنیے گا غور سے. ورتل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، آہستہ آہستہ پڑھ، رک رک کے پڑھ، جلدی نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ تجھے پڑھانا کم ہے، چڑھانا زیادہ ہے. جب رک رک کے پڑھے گا تو تھوڑا پڑھے گا، اور چڑھے گا زیادہ. مسلسل چڑھ ہی رہا ہے اور رک رک کے پڑھ رہا ہے تو پڑھے گا کم، چڑھے گا زیادہ. اس لیے کہ اگر جلدی جلدی پورا کر لیا تو تیرے مرتبے کی جو انتہا ہے، مرتبے کا جو آخر ہے، جہاں تجھے پہنچنا ہے وہاں تک پہنچ نہ سکے گا. اس لیے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ تاکہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں تجھے چڑھانا ہے. میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُ بِهَا، تیرا مرتبہ وہی تک ہوگا جہاں تیرا قرآن پورا ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، مدرسہ اہل سنت حسینیہ حنفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ دولہا تو بنیں گے انشاءاللہ قرآن پڑھ پڑھ کے. اچھا دولہا تو دیکھ ہی رہے ہو، شادیاں تو خوب چل رہی، دولہا دیکھتے ہیں نا جی. آج کل ہم دولہا دیکھ رہے ہیں، خوب دولہا، لیکن ایسے دولہا دیکھ رہے ہیں کہ خوش ایک دن رہتا ہے اللہ ماشاءاللہ. جو روزانہ دولہا دیکھ رہے ہیں نا، روزانہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، گھوڑوں پہ چل رہے ہیں، بگیوں میں بیٹھ رہے ہیں، وہ ایک دن خوش رہتے ہیں، باقی تو پوری زندگی چہرے سے افسوس یا پھر تھکاوٹ ختم ہی نہیں ہوتی. جی بے شک بے شک. ایسے دولہا تو روزانہ دیکھ رہے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دولہا وہ ہیں جن کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوگی، جن کی شادابی کبھی نہیں جائے گی. یہاں رہیں گے تب یہ شاداب رہیں گے،
इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे तब भी शादाब होंगे, मैदान क़यामत में उठाए जाएंगे तब भी शादाब होंगे। कैसे दूल्हा है मैं बता दूं आपको, इजाजत है ना मेरे भाई, इजाजत है बता दूं? तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, ये कैसे दूल्हा है, कैसे दूल्हा है? आका इरशाद फरमाते हैं अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दि व मन फीहिन। मेरे आका ने फरमाया कुरान अल्लाह को प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आसमानों से ज्यादा प्यारा है, जमीन से ज्यादा प्यारा है। आसमान में जो कुछ है उससे ज्यादा प्यारा है, जमीन में जो कुछ है उस सबसे ज्यादा प्यारा है। और मेरे भाई कुरान क्यों नहीं होगा प्यारा? इसलिए कि जिस रब ने उतारा वो रब प्यारा है, जिस महबूब पे उतरा वो महबूब प्यारा है, कुरान प्यारा है, ये सब प्यारे हैं। तो जिसने अपने सीने में रख लिया वो भी प्यारा, सुभान अल्लाह, सुभान, वो भी तो प्यारा है। जिसने याद कर लिया वो प्यारा है, वो ऐसा प्यारा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हामिलुल कुरानी फी जिल्लिल्लाहि यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुरान का पढ़ने वाला और कुरान के मुताबिक अमल करने वाला कल कयामत के दिन जब सब परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक भाग रहा होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिब ही व बनी, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। उस दिन होल नाकी के आलम में सब परेशान होंगे, लेकिन ये कुरान पढ़ने वाले और कुरान पर अमल करने वाले उस दिन अर्शे इलाही के साए के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हें कौन सा साया मिलेगा बोलो? अर्शे आजम के साए, अर्शे इलाही के साये के नीचे होंगे। हामिलुल कुरान फी जिल्लिल्लाहि यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु, अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होंगे। उस दिन इन्हें वो साया मिलेगा। ये कुरान के पढ़ने वाले, मैंने कहा कि दुनिया में है, ताजगी में है, जब तक रहेंगे ताजगी में है। इसलिए कि आप देखेंगे कि जब ये दुनिया में न कुरान पढ़ाएंगे तब आगे होंगे, स्टेज पे बैठेंगे तब आगे होंगे, निकाह पढ़ाएंगे तब आगे होंगे। ये तो इमाम है, अगर खड़े हो जाए तो कौम खड़ी हो जाए, अगर रुकू करे तो कौम रुकू कर ले, अगर ये सजदे में चले जाए तो कौम सजदे में चली जाए। इनकी ये शान होगी कि जब तक जिंदगी में है तब तक ताजगी ताजगी है, और कब्र में जाएंगे तो कुरान की बरकतों से एक सूरत कुरान की ऐसी है कि कब्र में आके बचा लेती है, अगर गुनाहगार भी है। तवज्जो है, खत्म कर दूं तकरीर? नहीं इधर। मैं तो सोच रहा था कि हदीसें सुना दूं, कुछ और सुनना चाह रहा है, मैं सुना दूं हदीसें? मैं तो कुरान के उन्वान पे, इन बच्चों के उन्वान पे तकरीर कर रहा हूँ। सुने, यानी मुझे बताया गया, इशारा भी दिया गया, मैं थोड़ा इदारा समझा दूं, थोड़ा कुरान के ताल्लुक से बता दूं। जो ये पढ़ाते हैं मेहनत करते हैं, जो आप पढ़वाते हो मेहनत करवाते हो, उसके ताल्लुक से मैं बता दूं ये कैसा है और कैसा है, क्या मर्तबा है इनका। इंशाअल्लाह कल कब्र में जाएंगे, अगर नफ्स थोड़ा सा इनका शामत नफ्स की बुनियाद पर अगर बिगड़ भी गया, वहां पर अजाब के फरिश्ते भी अगर आ गए तो सुनो, एक सूरत पाक ऐसी है कलाम मुकद्दस में जिसको सूरह हामीम सजदा कहा जाता है। अगर उसको किसी ने पढ़ लिया है, पढ़ने का आदी बन गया है, उस सूरत की तिलावत करता रहता है, तो ऐसा हो चुका है कि एक जो शख्स तिलावत करता था, शामत नफ्स गुनाह भी हो गए थे उससे, कब्र में चला गया, अजाब के फरिश्ते आ गए, उन्होंने अजाब देने का इरादा किया, ये सूरत फौरन कब्र में पहुंच गई। और इसने जाके अपनी तिलावत करने वाले को, उस शख्स को कि जो इस सूरत को पढ़ता था, उसको अपने परों के नीचे ऐसे छुपा लिया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है, ऐसे छुपा लिया। बताओ दुनिया की कौन सी ऐसी हिफाजती इंतजाम है कि जो इस तरह की हिफाजत कर ले? कौन सी चीज है कि जो दुनिया के अजाब से बचा दे? कौन सी चीज है हमें जो रब के अजाब से बचा दे? कौन सी चीज है जो फरिश्तों के अजाब से बचा दे? मैं कहूंगा कि ये कलाम मुकद्दस ही है कि ये दुनिया में भी अजाब से बचाता है और कब्र में भी अजाब से बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान ही है जो इन अजाबों से हमें महफूज रखता है। बचा लिया, ऐसे छुपा लिया जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपा लेती है, अपने अंडों को छुपा लेती है, ऐसे छुपा लिया। और कहने लगी परवरदिगारे आलम,
बता दूं आगे क्या कहती है सूरत। परवरदिगार आलम, है मेरे परवरदिगार, लोग मुझे सिफारशी समझ के पढ़ते थे। जी बेशक बेशक। सूरत हामीम सजदा कहती है रब से, रब लोग मुझे सिफारशी समझ के पढ़ते थे, शफाअती समझ के पढ़ते थे कि मैं लोगों के काम आऊंगी, लोगों को बख्शवाऊंगी। परवरदिगार आलम तू इसे अजाब मत कर, इसे बचा ले। ये कहेगी सूरत, परवरदिगार आलम का दरियाए रहमत जोश मारेगा। सूरत जब ये कहेगी कि परवरदिगार आलम मेरे कहने से इसको बख्श दे, इससे तवज्जो है ना मेरे भाइयों की? जी बेशक। तवज्जो है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहेगी परवरदिगार आलम? सुनो इस सूरत की सिफारिश सुनो और सिफारिश के अल्फाज सुनो। परवरदिगार आलम मेरे कहने से बख्श देना, बख्श देना, और अगर नहीं बख्शता है तो मुझे अपने कुरान से निकाल दे। अल्लाह। ये सूरत कहती है सूरह हामीम सजदा, अगर मेरे कहने से इसको नहीं बख्शता, इससे अजाब को नहीं हटाता, तो फिर मुझे कुरान से निकाल दो। इसलिए कि कुरान में लोग मुझे सिफारशी समझ के पढ़ते थे, शफाअती समझ के पढ़ते थे। अब तू नहीं बख्शना, नहीं मानना, तो फिर मुझे कुरान से ही निकाल दो। जब ये कहा रब का दरियाए रहमत जोश मारता है। सुनो मेरी तरफ देख कर मेरे भाई, रब का दरियाए रहमत जोश मारता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरिश्तों इसके गुनाहों को गिन लो। सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोल दें इसके गुनाहों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके गुनाहों को, जो कुरान तुम पढ़ते नहीं वो कुरान की एक सूरत कहती है गुनाहों को गिन लो। जिस कुरान की तिलावत नहीं करते वो कुरान की सूरत बोलती है गिन लो। गिनवा रही, सिफारिश कर रही। परवरदिगार आलम गिनवा रहा है, फरिश्तों गिनो कितने हैं गुनाह, कितने हैं गुनाह। रब फरमाता है फरिश्तों इसने तिलावत की है कुरान की, एक सूरत की तिलावत की है, कुरान पढ़ा है, इसलिए जितने गुनाह है हर गुनाह के बदले जन्नत में एक मर्तबा बढ़ाते चले जाओ। गुनाह मिटा दो, जन्नत में एक रुतबा बढ़ा दो। तुम भी कुरान पढ़ोगे तो मर्तबे तुम्हारे भी बढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। तो कब्र में काम आ रही नहीं बोलो तो ताजगी कहां रहेगी? कब्र में। और घर के बारे में तो ये घर में पढ़ते नहीं। एक रुकू पढ़ो मेरे भाई, पढ़ लिया करो। 2 रुकू पढ़ो, रोजाना तिलावत कर लिया करो। अगर एक पारे की मोहलत मिल जाए तो फजर के बाद पढ़ लिया करो। इशा के बाद थोड़ी देर बैठकर सूरह मुल्क ही कम से कम उसकी तिलावत कर लिया करो। कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये कुरान दुनिया में काम आएगा। इन्नल बैतल्लज़ी युक़रअ फ़ीहिल कुरान ला यत्तसिउ अला अहलिही। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो घर जिसमें कुरान पढ़ा जाए वो घर बड़ा वसी बरकतों वाला बन जाता है, बड़ा वसी बरकतों वाला बन जाता है। आसमान से लेकर जमीन तक नूर के शामियाने बना दिए जाते हैं, नूर का रास्ता बना दिया जाता है, और उस रास्ते से होकर फरिश्ते उस घर में हाजिर होते हैं, उस घर में आते रहते हैं। आका फरमाते हैं वह हिजरतुल लिश्शयातीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाते हो ना कि मौलाना साहब जरा तावीज बना दियो, घर में जिन्न परेशान कर रिया, से परेशान कर रिया, ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा। कुरान पढ़ोगे, हदीस में है वह हिजरतुल लिश्शयातीन। कुरान की बरकत ये होगी कि उस घर से शयातीन को भगा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ोगे नहीं तो फिर ये मुसीबतें तो आएंगी, ये परेशानियां तो आएगी। इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द। अल्लाह ताला बस्ती पे अजाब देने का इरादा करता है। एक बस्ती को अजाब दे दिया जाए, क्या फायदा है मदरसों से और क्या फायदा है बच्चों से? क्या फायदा हमारे उन नौनिहालों से कि जो छोटे छोटे सीने से ये सरनल कुरान लगाकर, कायदा लगाकर, कुरान लगाकर अपने उस्ताद के पास जाते हैं, मदरसा जाते हैं, चलते हैं, छोटे छोटे कदमों से जाते हैं। क्या फायदा? अल्लाह बस्ती को अजाब देने का इरादा फरमाता है। चोरियां बहुत हो रही, लोग हराम खा रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, रिस्क हलाल की तरफ तवज्जो नहीं है, लोगों को धोखा दे रहे हैं, और आजकल तो हर चीज में कमीशन चल रही है, हलाल की तरफ तवज्जो नहीं। अगर जानवर को भी खिलाता है ना बरसिंग तो चोरी का काट के खिलाता है।
आलू खुदाई चल रही, कहीं पड़ोसी के ना खोद लेता हो। हलाल की तरफ तवज्जो नहीं, जैसा भी है आ जाए, जैसा भी है मिल जाए। हराम का एक लुकमा अगर मुंह के अंदर चला गया तो इबादत 40 दिन की कबूल नहीं होगी, दुआएं कबूल नहीं होंगी, दुआएं कबूल। इसलिए हमारे बुजुर्ग ज्यादातर जो तवज्जो देते थे वो किस बात पर? हलाल पर। कितनी जगह तो दावत नहीं खाते थे, कितनी जगह पहुंचते नहीं थे। क्यों? इसलिए कि पता नहीं कैसा लेके आया है, कैसा खिला रहा है, किस तरीके का लेके आया है। हजरात मोहतरम, हलाल इसकी तरफ तवज्जो दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है इन बीमारियों को। शराब के आदी हो गए, जुए चल रहे हैं, सट्टेबाजियां हो रही है, लोग चोरियां कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली बकने के शौक हो गए हैं, रंडीबाजियों के शौक हो गए हैं, लोग माँ बाप को सता रहे हैं, पड़ोसियों पर जुल्म के हाथ बुलंद कर रखे हैं। इसलिए अब इस बस्ती को अजाब दे दिया जाए, ये बस्ती वाले दुनिया में रहने के लायक नहीं है, मार दिया जाए, हलाक कर दिया जाए। कितनी बस्तियों में अजाब आए हैं। समुंदर के किनारे पे क्या तुमने सोनामी लहरों में लोगों को बहते नहीं देखा है? क्या तुमने जमीन को फटकर जमीन में धंसते हुए लोगों को नहीं देखा है? क्या बारिश के तूफान में तुमने लोगों को मरते हुए नहीं देखा है? क्या आंधियों से तुमने लोगों को तपते हुए नहीं देखा है? ये रब के अजाब थे, अजाब आते हैं, रब देखता है कि बस्ती वाले अजाब में मुब्तला होने के करीब, लेकिन देखता है कि छोटे छोटे बच्चे कुरान सीने से लगा के मदरसे की तरफ जा रहे हैं। जी बेशक बेशक। बस्ती वाले बिगड़े हैं, बिगड़े हैं, मगर इन बच्चों को देखा सीने से कुरान लगा है, सीने से कुरान लगा है, ये सरनल कुरान लगा है, मदरसों की तरफ जा रहे हैं, कदम नन्हे नन्हे पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि कदम जमीन पे पड़ते हो, इनके कदम कहाँ पड़ते हो? इनके पैरों में चप्पल नहीं, पैरों में जूता नहीं, पैरों में बहुत अच्छे बहुत अच्छा जिस्म पर लिबास नहीं, पैरों के नीचे कालीन नहीं, बहुत अच्छे गद्दे नहीं, लेकिन इनका मर्तबा इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, कालीन हो के ना हो, गद्दे हो के ना हो, अच्छे जूते हो के ना हो, इनके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर हुआ करते हैं। फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो माइक का हक अदा नहीं होगा, है ना जी, अब नहीं होगा। नारा लगाओ यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मौलाना निजामुद्दीन निजामी फराइज निजामत से सुबुकदोश नहीं हुए अभी, जी बेशक। अभी तो बीच के भी बाकी हैं, अतराफ के भी बाकी हैं। सुने तवज्जो से, मेहनत नहीं हो रही मेरे भाई, सुनेंगे ना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी उम्मत को, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, बख्श दे। बड़ी प्यारी बात कही, और दुआ है ना आका की है, और दुआ आसानी से मेरे आका की क्या रद्द होती है दुआ है? और दुआ आसानी से मिल भी जाती है किसी को, लेकिन उम्मत को तो मिली है, उम्मत को मिली। अगर दुआ कराने के लिए भी जाना पड़ता ना तो बहुत दूर जाना पड़े, और बहुत 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 दूर अपने पीरों के पास जाते, कहाँ नहीं जाते। मेरे आका दुआ फरमा रहे हैं सबके लिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। सामने बैठे हजरत अबू बकर सिद्दीक, बराबर में हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा आमीन, हजरत उमर फारूक भी बोले आमीन। मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुरा के आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की दुआ है ना। आला हजरत फरमाए, इनायत का जोड़ा, शफाअत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, सुभान अल्लाह, सहे इज्जतो इख्तिलाए मोहम्मद, के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद, सुभान खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम।